Hello, hi everyone. Very good afternoon. Thanks for joining in. We'll be starting this session within 2 minutes. We'll just wait for other folks to join in. Let's just give them 2 minutes of time. From then, thereafter, we'll just start quickly. क्या किसको कौन दवा दे दिए? इधर से निकाले, उधर ही से नहीं निकालते? अच्छा। Yes, Neha, the video that you are playing is not audible. Hey, Samrat, wasn't it audible? No, it wasn't audible. Okay, not an issue. Let's just not waste time now. We'll just start. Hi everyone. Very good afternoon. Thanks for joining in. For folks who have joined for the very first time, let me just give a quick introduction of what we are doing. Basically, we conduct exclusive session every day from Monday to Friday between 7 to 8 and on weekends between 3 to 4. And these sessions are all for you. We are just trying to help you, upskill yourself or for career development. So we come up with different topics every week. Uh, and Today we have Samrat with us, and he'll be talking about future of internal combustion engine, the career opportunities in it, the challenges that they face in this kind of industry. So we'll give it over to Samrat. If you have any queries in between, please do not disturb. Let him continue with the session, and at the end, you can have a question answer round wherein you can unmute yourself and ask your questions. Also, in between, if you have any queries, please put it in the chat box. We'll address it at the end of the session. I hope that's clear. And without any more delay, let's hand it over to Samrat. Yes, Samrat, you can start from here. So thank you, Sneha. First of all, am I audible to everyone? Yes. Okay, thank you. So I'll just share my screen. So first of all, thank you, Sneha. Thank you for providing, and I would like to thank Apna as well, Apna community, for providing this opportunity wherein I am able to present my views as well as my projections on the topic future of internal combustion engines. So my name is Samrat Tomar. I am working as a senior manager in product engineering in Liugong India Private Limited. So Liugong is basically China's fourth largest construction equipment and industrial equipment manufacturer. And I am working in product engineering in structural design and vehicle integration domain. So currently I am looking after vibratory compactor, both asphalt as well as tandem, right? So every day in and out, we usually deal with the subjects like internal combustion engine because our machines, the prime mover is the IC engine only, right? So that is BS6 compliant IC engine. And that's how I am able to present my views on this topic. So just give me a second. So this will be your table of content. So today in this session, we'll be speaking regarding the automobile market trend. Currently, what is the auto trend in India? We'll completely speak about the India as of now, because considering other nations or other countries will be a bit challenge because their norms, right? The requirements are totally different with respect to the requirements what we have in India.
So we'll focus on the Indian market. I'll give you the glimpse of the international market as well, but we'll purely focus on the Indian market. So we'll first speak regarding the automobile market in India, how it is evolving, what is the current market share in each and every category. Then its challenges also we'll discuss. Then next we'll speak regarding the effect of emission norm changes in India, because all the engines what you see on road, right, they all are governed by the emission norms. And as you see that emission norms in last few years, like last couple of years, have changed drastically, right? So we need to understand the impact of emission norms also on the engines, because this will govern the future for the engines. What kind of engines, what kind of technology we need to incorporate or we need to develop in order to address these emission norms. Then next we'll speak regarding the future of electric vehicles in India, and last would be the hydrogen as an alternative to conventional fuel. After this, we'll speak regarding the career opportunities and job opportunities in this specific domain, right? Followed by question and answer sessions. So first, we'll talk about the automobile market in India. So as you all are aware, I hope everybody is okay with the English, or do you want me to take it in Hindi as well? Hello, English में shall we continue, or do you want me to take it in Hindi also in between? I see in the chat box people are commenting saying Hindi, so I feel it would be better if you can manage both Hindi, English. Okay, in between you can. Yeah. Not an issue. Okay, guys. So we'll be discussing in both the languages. So as you all know, right, India is the fastest growing automobile market in the world. So currently, last year 2023 से 24 तक हम लोगों ने इंडिया में 2.38 करोड़ व्हीकल्स बेचे हैं, राइट? तो ये 2.38 करोड़ व्हीकल्स जो हैं, ये सिर्फ एक साल का, एक फाइनेंशियल ईयर का टोटल सेलिंग है. नाउ इसमें 75% आपके 3 व्हीलर्स हैं, 13% आपके पैसेंजर व्हीकल्स हैं, एंड रिमेनिंग 12% आपके कमर्शियल व्हीकल्स हैं. तो उसमें आप देख सकते हो एक साल में, सिर्फ एक साल के टेन्योर में 2.38 crore vehicles we have sold in India. And that is very high, right? Looking at the size of the country, the pace at which we are growing, that means the pace at which the auto sector in India is growing, is very high. Year on year, हर साल हम 12 से 13% की growth देख रहे हैं इंडिया में सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में. Now you all would be knowing about Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM, right? So this is basically a governing body. ये एक governing body है जो एक कंट्रोल एस्टेब्लिश करती है सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, जिससे वो उनको क्या डेवलप करना है, उनको कैसे बेचना है, उनको क्या टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, वो सारी चीजें सीएम डिसाइड करता है along with the agreement from all the major stakeholders. Stakeholders में कौन है? आपके सारे ऑटोमोबाइल प्लेयर्स, राइट? कभी भी मारुति या टाटा डिसाइड नहीं करते कि हमको क्या देना है. They first discuss their projects with India, with Indian government, especially SIAM, EICMA, right? And based on the joint call taken by them, they usually take it forward. So SIAM के according, year 2024 में we sold 2,38,53,463 units, right? जो कि पिछले साल था 2,12,04,846 units, right? 12% का इंक्रीज है. और ये 12% का जो इंक्रीज है, ये जस्ट आफ्टर कोविड ही है, राइट? बिकॉज 22 लास्ट तक भी कोविड था, माइनर था लेकिन उसका इफेक्ट था. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया की जो मार्केट है, स्पेशली ऑटोमोटिव मार्केट, वो कितना तेज स्पीड से बढ़ रहा है, राइट? नाउ एट द सेम टाइम इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इमिशन नॉर्म्स ऑन दीज इंजन, बिकॉज अगर इसी स्पीड से इंडिया का मार्केट बढ़ता है और उसके ऊपर अगर आपके इंजन के इमिशंस के ऊपर या इंजन के टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर कोई कंट्रोल नहीं है, राइट, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रीथ. हमारे लिए सांस लेना भारी हो जाएगा. जैसा आज की तारीख में आप दिल्ली में देख ही रहे हो, राइट? दिल्ली के लिए नॉर्म्स अलग निकलते हैं और बाकी सिटीज के लिए अलग निकलते हैं. तो हम इंजन के ऊपर डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड द इमिशन नॉर्म्स which were forced in India in last couple of years, right?
सो 90s तक 1990 तक भी कोई बहुत ज़्यादा टाइट नॉर्म्स इंडिया में नहीं थे, राइट। इट वॉज इन 1991 जब पहली बार नॉर्म्स इंडिया में स्टैब्लिश हुए, राइट। 91 में भी आज के रिस्पेक्ट में बहुत कम गाड़ियां थी, लेकिन उस समय के हिसाब से काफी थी। इतनी थी कि गवर्नमेंट को लगा कि यार अपने को कुछ इंजन्स के ऊपर, स्पेशली डीजल और पेट्रोल इंजन्स के ऊपर हमको कुछ इमिशन नॉर्म्स लेके आने चाहिए, राइट। अब क्योंकि वो एरा जो था वो एक बहुत ही बेस, मतलब उस समय बहुत ज्यादा, हालांकि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था, गवर्नमेंट के पास ही बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। सो इन लोगों ने अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट से डिस्कस किया, राइट। ये यूरोप गए, वहां के जो इमिशन कंट्रोल अथॉरिटीज थी उनसे बात किया, और उनसे बात करने के बाद में अपना केस प्रेजेंट किया, एंड देन दे डिसाइडेड द लिमिट्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर पार्टिकुलेट मैटर्स इन इंडिया। और उस हिसाब से इन लोगों ने इमिशन नॉर्म्स बनाने शुरू किए धीरे धीरे। जस्ट आफ्टर 91 में 92 में ये लोग मास मार्केट जो इन्होंने इमिशन नॉर्म्स फाइनल किए थे वो सारी व्हीकल्स के ऊपर अप्लाई कर दिए, इंक्लूडिंग डीजल व्हीकल्स आल्सो, राइट। 4 साल तक ये चला। उसके बाद 1996 में उन लोगों ने इस इमिशन नॉर्म्स को वापस से रिवाइज किया, क्योंकि गाड़ियों की सेल जो है वो बढ़ने लगी थी, राइट। और उसमें इन लोगों ने सबसे पहली बार बोला गया कि हमको कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो है गाड़ियों में डालने पड़ेंगे, स्पेशली उन गाड़ियों में जो डीजल है, पहली चीज। और अगर पेट्रोल है तो लेडेड फ्यूल पे चल रही है, क्योंकि उस जमाने में पेट्रोल में लेड का कंटेंट बहुत हुआ करता था, जो कि एक अनदर प्रॉब्लम था ऑटो इंडस्ट्री के लिए। सो गवर्नमेंट से बात करके दे डिसाइडेड दैट वील प्रोवाइड अनलीडेड पेट्रोल, राइट, पेट्रोल विच इज फ्री फ्रॉम लेड। 1998 में अगेन इन लोगों ने वापस से नॉर्म्स रिवाइज किए, और इस बार उन नॉर्म्स के साथ में इन लोगों ने कोल्ड स्टार्ट को भी कंसिडर किया, राइट। अब ये कोल्ड स्टार्ट क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो पुरानी एम्बेसडर्स या पुरानी जो व्हीकल्स हुआ करते थे, उन गाड़ियों में अगर आप उनको सर्दियों में अगर स्टार्ट करना है, राइट, जैसे लेट से आप जम्मू में हैं, कश्मीर की तरफ हैं, आपको सर्दियों में अगर उन गाड़ियों को स्टार्ट करना है, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट दोज व्हीकल्स। समटाइम आपने देखा होगा कि वो लोग नीचे इंजन के नीचे आग जलाया करते थे, जस्ट टू एलिवेट द टेम्परेचर, इंजन का टेम्परेचर बढ़े, इंजन के ऑयल का टेम्परेचर बढ़े, सो दैट जल्दी से इग्निशन, इंजन में इग्निशन स्टार्ट हो, राइट। तो ये इस तरीके की परेशानियां जो है ये 96 97 तक गाड़ियों में सभी में आती थी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया लेट अस स्टार्ट फोकसिंग ऑन द कोल्ड स्टार्ट सिस्टम आल्सो, एंड आफ्टर दैट इन 1999 दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द व्हीकल्स विद द कोल्ड स्टार्ट सिस्टम, जिसमें उन लोगों ने इंजन के अंदर ग्लो प्लग्स लगाए, इंजन के अंदर हीटर वॉल्व्स लगाए, जो इंजन में जो हवा आती है, जो आप एयर सक करते हो, तो उस हवा को गर्म कर देता था। ग्लो प्लग्स जो है ये कंबशन चेंबर के टेम्परेचर को गर्म करता था, जिससे इग्निशन में बेनिफिट मिलता था। और आज ये प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। अनलाइक अगर आप बिल्कुल ही कहीं -30 -35 पर चले जाएं, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज आज की तारीख में कोल्ड स्टार्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है। देन ट्रांजिशन कहां से शुरू हुआ? ट्रांजिशन शुरू हुआ आपका ईयर 2000 में, राइट, जब पहली बार इंडिया में यूरो 1, मतलब जो यूरो 1 यूरोप में जो नॉर्म्स चलते थे, उसी के इक्विवेलेंट नॉर्म्स BS2 के हिसाब से इंडिया में लेके आए गए, राइट। उसके बाद जस्ट अब 1 साल बाद भारत में 2001 में यूरो 1 को बेसिकली भारत स्टेज 2 को अप्लाई किया गया, और सारी की सारी मेट्रोज में, सारी सिटीज में, इंक्लूडिंग CNG एंड LPG व्हीकल्स में भी अप्लाई कर दिया गया, राइट। उसके अगेन 2 साल बाद फिर वापस से भारत स्टेज 2 नॉर्म्स को रिवाइज किया गया और 13 मेजर सिटीज में अप्लाई किया गया, राइट। 2003 के बाद में द मोमेंट वी वेंट टू 2005, सो भारत स्टेज 3, दैट मींस सक्सेसर ऑफ भारत स्टेज 2, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, राइट। अब आप देखोगे यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। आप देखोगे इन सारे 1 से 2, 2 से 6, 6 to 8 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था सालों में, 2 2 3 3 साल का ही डिफरेंस था। लेकिन आप यहां देखोगे 2005 के बाद में जो नेक्स्ट इमिशन नॉर्म्स आए थे वो सीधे 2010 में आए, 5 साल बाद। और 10 के बाद में जो नेक्स्ट आए हैं वो सीधे 2017 यानी 7 साल बाद आए हैं, यानी 12 साल के लाइफ स्पैन में। और ये वो समय था जिस समय इंडिया की इकोनॉमी में बहुत तेज स्पीड से गाड़ियों का अडॉप्शन चल रहा था। 2005 से पहले तक भी बहुत कम गाड़ियां हुआ करती थी, 2005 से 17 के बीच में एकदम से जंप आना शुरू हुआ, राइट। और इस समय इमिशन नॉर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस नहीं था। 5 से 10 में 5 साल तक उन्होंने बस BS4 निकाल दिया, और उसके बाद अगले 7 साल तक वही सेम ही नॉर्म्स चलाए, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, राइट। तभी जब बीजेपी गवर्नमेंट आया, उन लोगों ने
18 के अंदर अंदर सबसे पहले उन लोगों ने BS6 लॉन्च कर दिया। अब आप देखोगे 4 से सीधे उनको 6 पे जाना पड़ा, क्योंकि 5 के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचा था, राइट। ऐसा नहीं कि हम लोग कर नहीं सकते थे, हम लोगों ने कर सकते थे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज से बात किया तो इंडस्ट्रीज ने हाथ खड़े कर दिए। दे सेड दैट सर, in this span of time, in less than 2 years, how you expect us to develop engines, right? We are also running with some profit margin. We have our supplier base and they are not ready with this much time span, right? इतने कम टाइम में how you expect us to develop the engines? So उस चीज को कंसिडर करते हुए हमें BS5 जो है वो कंप्लीटली स्किप करना पड़ा, एंड वी वर फोर्स्ड टू अडॉप्ट BS6 2018 में, राइट, विच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली, एंड देन 2020 में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द नेशन, राइट। और 23 में, जैसे यू ऑल नो, अगेन 2 साल बाद में फिर हमारे पास में RDE नॉर्म्स करके आ गए। RDE स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ड्राइविंग एमिशंस, right, which is the phase 2 of BS6 norms, followed by the fuels like E20. So ये बेसिकली आपको समझने के लिए था कि कितना तेज स्पीड से ट्रांजिशन हुआ, राइट, कहाँ हम लोग फंसे, और देन देयर वाज द नीड टू कैच अप, राइट, बिकॉज और सारी नेशंस जो हैं वो तो बहुत तेज स्पीड से इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑल्टरनेट फ्यूल्स, LNG, इलेक्ट्रिफिकेशन, हाइड्रोजन सबकी तरफ जा रही हैं, बट हम लोग अभी भी BS4 BS3 वाली व्हीकल्स पे ही यूज कर रहे थे, राइट। So now we'll speak regarding the effect of emission norms on Indian auto industry, right? अब आपको फ्यूचर में किस तरीके के इंजन्स चाहिए व्हीकल में, इंजन्स चाहिए या कोई दूसरा सिस्टम आपको डिप्लॉय करना है, this basically is decided by the government only, right? Because based on the government's rules and regulations and the emission standards what they have defined for future, based on that only we have to decide what kind of technology we have to bring in the market, right? तो आप यहाँ देख सकते हो इंडिया में based on the study conducted by Health and Economics Impact of India, 18% of the deaths, right, a loss of 1.4% of GDP in 2022 could be attributed to air pollution, right? And countries like cities like Delhi, transport is seeing contribution between 13 to 18% during peak pollution months, right? As the market develops, the need for the stricter emission norms becomes necessary, right? तो क्योंकि इमिशन गाड़ियों से बहुत ज्यादा है और वो हार्मफुल है, तो वी नीड टू कंट्रोल दैट। अब आप देखेंगे BS4 से BS6 में क्या डिफरेंस हुआ। दिस इज BS4, दिस इज BS6। तो डिफरेंस कहाँ आया? BS4 में आप देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, नाइट्रॉक्स, BS4 व्हीकल्स में 80 मिलीग्राम था, ठीक है, ड्यूरिंग इमिशन पर किलोमीटर, जो इसको 60 मिलीग्राम कर दिया BS6 में। सिमिलरली डीजल के लिए इट वाज 250 मिलीग्राम, राइट, ऑलमोस्ट 3 गुना पेट्रोल इंजन के, जिसको इन लोगों ने वापस से 80 कर दिया, ड्रास्टिक रिडक्शन, राइट। और इसी के चलते सबसे ज्यादा इंपैक्ट वाज हैपेंड ऑन द डीजल इंजन्स, राइट। पार्टिकुलेट मैटर इट वाज 25, जिसको 1/4 करके सीधे ये 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर पे लेके आ गए, 68% रिडक्शन, और इसमें 82% रिडक्शन। हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें भी 300 मिलीग्राम पर किलोमीटर से रिड्यूस करके दे ब्रॉट इट टू हाफ, क्लोज टू 170 मिलीग्राम पर किलोमीटर। अब ये जो फिगर्स है ना, ये द मोमेंट यू सी इन द पेपर और इन द डॉक्यूमेंट, इट डजंट टेल द बैक स्टोरी, राइट, क्योंकि ये 80 से 60, 250 से 80 लाने के लिए इंडस्ट्रीज को बहुत मेहनत करना पड़ा, right? Especially for petrol engines, it was not that difficult. It was very, very difficult for the diesel engines, right? It was very difficult for the diesel engines, and diesel engines में ही सबसे ज्यादा issue face हुए, and that is the reason companies, there are a lot many companies in India who decided to completely discontinue diesel from their fleet, right? आज की तारीख में, आज से BS4 के टाइम पे, राइट, सारी ही कंपनीज पेट्रोल और डीजल इंजन दिया करती थी। आज की तारीख में सिर्फ 4 कंपनीज हैं जो आपको डीजल देती हैं, एक टाटा, एक महिंद्रा, एक किया और एक आपका हुंडई, राइट। ये 4 के अलावा इंडिया में कोई भी कंपनी अब डीजल इंजन नहीं दे रही है। विल नॉट टॉक अबाउट BMW, मर्सिडीज, सो दैट्स अ डिफरेंट सेगमेंट ऑल टुगेदर, बट मास मार्केट सेगमेंट की इफ वी टॉक अबाउट, ठीक है, जिस
सेगमेंट में सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं, उसमें सारी कंपनीज ने डिसकंटिन्यू कर दिया एक्सेप्ट दीज 4, एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग। मुझे नहीं पता कि ये कंपनीज अगले कितने साल तक प्रोवाइड कर पाएंगी, राइट? सो वील अंडरस्टैंड दैट व्हाट कंपनीज डिड नाउ टू improve their engines considering the new emission norms. So if you take the example of petrol engines, right? So petrol engines में BS6 के दौरान जब market switch हुआ BS4 से BS6 पे, so as we studied, the emission was supposed to be reduced from 30% to 80% to 30%, right? So इसमें BS6 norms also set limits for hydrocarbon and particulate matter, which were not specified in the earlier norms. So for this, सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज हुआ वो था कार्बोरेटर्स का। अब आप देखेंगे आज की तारीख में जितने भी पेट्रोल इंजन हैं मार्केट में, अधिकतर में से कार्बोरेटर्स निकाल दिए गए एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, राइट? बिकॉज फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में यू हैव कंट्रोल, यू कैन कंट्रोल लीन मिक्सचर, यू कैन कंट्रोल रिच मिक्सचर, राइट? कार्बोरेटर्स में कंट्रोल नहीं था। बेस्ड ऑन द थ्रॉटल इट यूज्ड टू इंड्यूस फ्यूल इनसाइड द इंजन, बट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है बिकॉज इट कैन बी प्रोग्राम्ड, right? And it also takes feedback from the exhaust system, so उसके हिसाब से वो मिक्सचर के रेशियोज को, प्रोपोर्शंस को चेंज कर सकता है। So fuel injectors were introduced in petrol engines, which was not there in earlier scenario or earlier emission norms or in earlier vehicles. इसके अलावा ये एक चीज था। दूसरा, they also installed catalytic converters, right? So catalytic converters के अंदर palladium रहता है, which is basically a catalyst, right? Or catalytic converters were installed to reduce the harmful gases to less harmful carbon dioxides, right? अब इसके चलते कॉस्ट भी इंक्रीज हुई अच्छी खासी गाड़ियों की। और तीसरा जो चेंज किया था दैट वाज द OBD, दैट इज ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम, जो कि BS6 में अभी फेज 2 में सारी गाड़ियों में डिप्लॉय किया गया। सो ये OBD बेसिकली क्या होता है, आज की तारीख में जितने भी इंजन व्हाट यू सी ऑन रोड जो BS6 कंप्लायंट है, वो सारे इंजन आर इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नड। इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नड आई मीन सबका अपना ECU है, राइट? और वो ECU ये OBD के साथ में कैलिब्रेटेड है, और इमिशन नॉर्म्स, मतलब इमिशन जो टेल पाइप से हो रहा है वो उसके ऊपर भी प्रिसाइजली कंट्रोल रखता है। अगर उसको इमिशन की वैल्यूज में डिफरेंस लगता है तो वो फ्यूल मिक्सचर्स को चेंज कर देता है, सो दैट आपके जो टेल पाइप से इमिशंस हैं वो कंट्रोल्ड रहे, राइट? सो ये OBD सिस्टम भी डिप्लॉय किया गया। इतना तो था खाली पेट्रोल इंजन में, राइट? अब हम जब डीजल इंजन में आते हैं तो ये बहुत ज्यादा चेंजेस थे। डीजल इंजन में हमको 250 से सीधे 80 मिलीग्राम्स में आना था, राइट? सो उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था बड़े डीजल इंजन के लिए, जो कमर्शियल व्हीकल्स में या जो बड़ी कार्स में लगते हैं, एनीथिंग विच इज अबव 2 लीटर और 2000 सीसी, उन गाड़ीज में वी वर सपोज टू प्रोवाइड सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन या SCR जिसको आप बोलते हो, अलॉन्ग विद इंजेक्शन ऑफ द यूरिया और द एडब्लू, राइट? जो गाड़ियां 2 लीटर से कम की थी, जैसे 1.5 लीटर या 2 लीटर से कम की जितनी डीजल इंजन थे, उन सब में इसकी जरूरत नहीं पड़ी। उन सब में सिर्फ और सिर्फ आपके डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर से काम हो गया, राइट? बट 2 लीटर से अबव की जितनी कैटेगरीज थी उन सब के अंदर SCR प्लस एडब्लू का यूनिट इंस्टॉल करना पड़ा। और वो अपने आप में एक जिसे बोलते हैं आज की तारीख में, वो एक अपने आप में इशू तो नहीं बोलूंगा मैं, बट वो एक रिक्वायरमेंट है डीजल इंजन की, और वो आप ओमिट नहीं कर सकते, आपको वो फॉलो करना है। आज की तारीख में अगर आप किसी ट्रक ड्राइवर से बात करें, राइट, विल नॉट स्पीक रिगार्डिंग द पैसेंजर सेगमेंट, बिकॉज कार जो लोग चला रहे हैं वो सब होशियार लोग हैं, राइट? दे आर स्टिल एजुकेटेड, बट द एजुकेशन लेवल व्हाट यू सी ऑन द ट्रक ड्राइवर्स, राइट, इट इज नॉट टू दैट, दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड। तो उन लोगों को बेचारों को इसमें दिक्कत होती है। अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी में यूरिया खत्म हो गया या यूरिया का लेवल लो हो गया, राइट? तो वो उसका महत्व नहीं समझते। आज वो समझते हैं, लेकिन जिस समय इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय उन लोगों को ये चीज नहीं समझ में आता था, एंड दे कंटिन्यू टू रन द ट्रक्स विदाउट यूरिया। अब सिस्टम में क्योंकि OBD लगा हुआ है, राइट, वो सेंस करेगा कि इसमें यूरिया है नहीं, और जैसे यूरिया नहीं है तो वो एक बार वार्निंग देगा। वार्निंग का भी एक टाइम है, उस टाइम तक वार्निंग प्रिवेल करेगी, उसके बाद में वो इंजन को डिरेट कर देगा, राइट? और आपको झक मार के गाड़ी को साइड में रोकना पड़ेगा। अब इन सब चीजों से न्यूजेंस होता था, डिलेज होते थे कंसाइनमेंट में, इश्यूज भी आते थे ड्राइवर्स के भी और ट्रक ओनर्स के भी, बट nobody can do anything about it. You have to live with it, so you need to learn how to control it, right?
तो डीजल इंजन में सबसे ज्यादा इशू हुआ, एंड दिस वाज द रीजन जिसके चलते कंपनीज डिसाइडेड दैट वी विल नॉट प्रोवाइड एनी डीजल इंजन फॉर द पैसेंजर सेगमेंट, बिकॉज इंडिया में अगर आप और मैं लेट से कार चला रहे हैं, ठीक है, खुदा ना खास्ता हम किसी इमरजेंसी में बाहर जा रहे हैं और हमारे साथ में इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, राइट, तो आप क्या करोगे? यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड। अनलाइक पेट्रोल, पेट्रोल में तो ऐसा कोई दिक्कत है ही नहीं, आप सीधे फ्यूल डालिए चलाइए, लेकिन डीजल में तो ये इशू है ना, एंड यू हैव टू लिव विद इट। इसीलिए BS6 में डीजल की जो सेल है वो बहुत तेज स्पीड से गिरी। एक तो सेल इसलिए गिरी क्योंकि कंपनीज ने डिसकंटिन्यू कर दिए, स्कॉडा ने बनाना बंद कर दिया, फॉक्सवैगन बनाना बंद कर दिया, फोर्ड तो चला ही गया, मारुति ने बनाना देना बंद कर दिया, फिएट ने देना बंद कर दिया, राइट, निसान, रेनॉल्ट, इन लोगों ने बनाना बंद कर दिया, तो बचे आपके पास में कौन? 3-4 ही बचे बस, राइट, जिसमें भी हुंडई और किया जो है वो तो एक ही है, दे आर यूजिंग एब्सोल्युटली सेम इंजन, सेम पार्ट नंबर्स, बस टाटा और महिंद्रा हैं जो आज भी मेहनत करके डीजल इंजन आपको दे रहे हैं, राइट, बट उनको भी ये म्यूजिक फेस करना पड़ेगा जो हमारे नेक्स्ट एमिशन नॉर्म्स आने वाले हैं, राइट। So these are the things that we need to consider in mind when we talk about the diesel technology for the future, right? Now आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। थर्ड थिंग इज द ऑब्लिगेटरी लेबलिंग। कैसा होता है? जैसे आपने देखा होगा, आप लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हो ना, तो उसके ऊपर एक वो BE का एक वो सर्टिफिकेट रहता है जिसमें वो स्टार्स बने रहते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी वाला, दैट इफ यू लेट्स से यू बाय अ रेफ्रिजरेटर, तो उसमें उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये 3 स्टार है या 4 स्टार है या 5 स्टार है, राइट। सो जितने ज्यादा स्टार्स हैं उतना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। यूरोप में इसी के जैसा एक नॉर्म होता है जिसके चलते वो गाड़ियों के ऊपर ऊपर भी एक डीकल लगाते हैं, एक लेबल लगाते हैं विच बेसिकली स्पेसिफाइज कि इस गाड़ी का इमिशन कितना है, राइट। अब आप जब यूरोपियन लोग जब शोरूम में जाते हैं तो दे यूजुअली लुक एट दैट डीकल एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर फ्री टू डिसाइड कि भैया आपको ये वाली गाड़ी लेनी है या आप कोई दूसरी गाड़ी लेना चाहोगे, राइट। तो ये चीज अभी इंडिया में नहीं है, लेकिन यूरोप में ये चीज है। वहां पे आप गाड़ी के शोरूम में जाओगे तो उसके ऊपर डिकल मिल जाएगा आपको कि ये टेल पाइप से कितना इमिशन रिलीज करती है। उसके बेसिस पे कंपनीज कैन डिसाइड कि भैया किस गाड़ी की सेल ज्यादा होती है और किसको हमें कम करना है, राइट। सो इस चीज को डील करने के लिए इंडिया के पास में अभी रोबस्ट बहुत ज्यादा सोल्यूशंस नहीं है, राइट। उनमें से एक जो है दैट इज द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, और सेकंड इज द हाइड्रोजन इंजन। सो विल स्पीक अबाउट बोथ ऑफ देम। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ये इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में बैक इन ईयर 2004, 5, 6 में, राइट। उस समय एक कंपनी हुआ करती थी बाय द नेम मैनी रेवा, राइट। इट वाज लोकेटेड इन बैंगलोर एंड इट वाज अ वेरी स्मॉल कंपनी। इट वाज ओन्ड बाय मिस्टर रवि मैनी। तो उन्होंने एक छोटी सी गाड़ी बनाई थी, दैट वाज अ 2-सीटर व्हीकल, इट वाज अ चीपर व्हीकल, राइट, इट वाज इकोनॉमिकल व्हीकल। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कदम रखा, सबसे पहली गाड़ी लॉन्च करी और उन्होंने काफी साल तक वो गाड़ी बेची। हालांकि वो गाड़ी बहुत ज्यादा नहीं बिकी, लेकिन सस्टेन्ड बिजनेस था उनका, ठीक है। इट वाज इन ईयर 2012, 13, 14 दैट कंपनी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। और 17-18 के अंदर टाटा एंड कंपनीज लाइक MG, राइट, दे स्टार्टेड रोलिंग आउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उस समय ये काफी डाइसी था, कस्टमर्स एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चार्जिंग हम कैसे करेंगे, रेंज क्या होगी, बैटरी की लाइफ क्या होगी, राइट। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑल दीज थिंग्स आर रिजॉल्व्ड नाउ, राइट। So EVs have gained significant traction in recent years as a cleaner and more efficient alternative to traditional gasoline powered cars, right? आज की तारीख में आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी इंप्रूव हुआ है। जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं परचेज कर रहे हैं, उन लोगों ने स्टडी करके परचेज कर रहे हैं। मैं अभी तक जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले बंदों से मिला हूं, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने मुझे बोला हो कि सर हमने तो ये ऐसे ही खरीद लिया। सब लोगों ने स्टडी करके पैसे डाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नो डाउट एक्सपेंसिव तो है ही है, पेट्रोल से तो एक्सपेंसिव ही है, राइट। तो उन लोगों ने स्टडी करके उसको, टेक्नोलॉजी को समझा, उनको टाइम भी लगा। 17 से आज हम 24 में बैठे हैं, काफी साल लगे। उन्होंने समझा चीज को, टेक्नोलॉजी को समझा, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, दे ऑल्सो स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग, गिविंग लेट्स से सब्सिडीज ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्रीज किया, ठीक है, अवेयरनेस भी बढ़ाई। आज आप टाटा की गाड़ी अगर लेने के लिए टाटा के शोरूम में जाते हैं, राइट, सो वो आपको डिटेल में गाड़ी एक्सप्लेन करता है, उसका पूरा बिजनेस एक्सप्लेन करता है,
गाड़ी के सारे प्रोज एंड कॉन्स आपको अच्छे से बताता है। उनका एक खुद का टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भी है, राइट, जिसमें आप तुरंत जैसे आप कार परचेस करते हो तो आपको इंक्लूड कर देते हैं। उसमें जितने भी लोग हैं, जिन लोगों के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो सब अपने अपने व्यूज शेयर करते हैं, राइट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 7-8 सालों में ये चीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर इंडिया में काफी काम हुआ है और एक्सेप्टेंस भी मिला है। अब आज की तारीख में देर इज अ स्ट्रॉन्ग पुश फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू कोलैबोरेट एंड टू शिफ्ट टुवर्ड्स द ग्रीनर ऑप्शंस। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा एज ऑफ नाउ अभी दूसरा कोई सस्टेन्ड नहीं दिखता है। आप देख लेंगे टाटा ने पिछले 3-4 सालों में 2 लाख से ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच दिए, राइट। और एक आध दो अगर कोई ग्लिच मिला हो तो मिला हो, अदरवाइज ऑल दोज व्हीकल्स आर वर्किंग फाइन एब्सोल्युटली विदाउट एनी इश्यूज, राइट। कस्टमर्स आर आल्सो हैप्पी, राइट। और इमिशंस तो उसमें कुछ है ही नहीं एज ऑफ नाउ। एंड आप इस ग्राफ की तरफ देखेंगे तो ईवी सेल आपको दिखता है कि 14 से लेकर 24 तक आप देखो कितना डिफरेंस आया है, राइट। अब ये जो पीरियड था ये रवि महीने का था, राइट, 16 तक। उसके बाद में 17 में धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हुआ, राइट। और आप देखोगे सडन बूस्ट जो हुआ है लास्ट, ये हुआ है सीधे कोविड के दौरान या कोविड के बाद में, राइट, जहां पे ये सीधे बहुत तेज स्पीड से निकला है। और आज लास्ट ईयर हम लोगों ने 2024 फाइनेंशियल ईयर में 16 लाख व्हीकल्स बेचे हैं, विच इज अ वेरी गुड नंबर एंड वेरी बिग एज वेल। इंडिया की साइज के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है ये, जिसमें आप ये देखेंगे कि 2 व्हीलर्स कितने हैं, 3 व्हीलर्स कितने हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स कितने हैं, लाइट पैसेंजर व्हीकल्स कितने हैं, बसेस भी, इवन हैवी ट्रक्स। देयर इज अ कंपनी बाय द नेम ओलेक्ट्रा, so they are working on launching the full range all electric trucks in India, right? अभी लास्ट जो बॉमा एग्जीबिशन हुआ था, जो एक्सकॉन हुआ था, उसमें ऑलरेडी दे हैव शोकेस दैट, राइट। इनफैक्ट टाटा, आइशर, दे आर फोकसिंग a lot on improving the driving dynamics as well as the business case of the trucks and buses. बसेस तो आप देख ही रहे हैं, आज की तारीख में कई सिटीज में इलेक्ट्रिक बसेस आ चुकी हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आईसी इंजन्स के ऑल्टरनेट में सबसे पहले जो आज नाम लिया जाता है दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। एंड 2030 तक एडिशनली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इज प्रोजेक्टेड टू क्रिएट अराउंड 50 मिलियन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स, राइट। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब इधर आप देखते हैं, सो दिस इज द ओवरऑल global market for electric vehicles, right? This includes electric vehicles also, this includes plug-in hybrids also, this includes battery operated vehicles as well, right? So आप देखेंगे 2013 में it was nothing, कुछ भी नहीं था globally, कुछ नहीं था। 2014, 15 भी कुछ खास नहीं था। 16 में you see थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 17 में अगेन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया, 18, 19, 20 में थोड़ा और तेज से बढ़े, और 21, 22 और 23 में तो इट वाज 3 टाइम्स, राइट। जिसमें आप देखेंगे चाइना जो है वो सबसे आगे है। चाइना PHEVs में और BEVs में दोनों में सबसे आगे है, फॉलोड बाय यूरोप। यूरोप में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर प्रिवेलिंग लाइक एनीथिंग। एक तो यूरोप में कैसा है कि बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं है, राइट। एंड पीपल ओवर देयर दे लव क्लीनर फ्यूल्स, उनको बहुत ज्यादा क्लैटर या इमिशन, बहुत ज्यादा टेल पाइप इमिशंस वगैरह दे डोंट लाइक, राइट। लाइक इन यूएस, राइट, देयर इज अ ट्रेंड, लाइक वहां पे जितने भी बड़े व्हीकल्स हैं दे यूजुअली गो फॉर V6 V8 इंजन्स, राइट। बट यूरोप में वो ट्रेंड नहीं है, उनको छोटे इंजन्स चाहिए, उनको लाइटर व्हीकल्स चाहिए, और उनको इमिशंस भी कंट्रोल चाहिए, राइट। तो उसके हिसाब से यूरोप, चाइना के बाद में नेक्स्ट जो है वो यूरोप में सबसे ज्यादा अडॉप्शन हुआ है दीज ऑल्टरनेट व्हीकल्स का, चाहे वो प्लग इन हाइब्रिड्स हो, राइट, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे वो आपकी हाइब्रिड व्हीकल्स हो, राइट। एंड लास्ट इज फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट यूएस में, क्योंकि यूएस में आज भी बिकॉज एरिया इज वेरी बिग, फ्यूल प्राइसेस आर लो, राइट, तो वहां पर आज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। बिक रही हैं टेस्ला एंड ऑल, रेवनी एंड ऑल, दे आर सेलिंग व्हीकल्स ओवर देयर, लेकिन अभी भी दे स्टिल लाइक दोज V6 एंड V8 रंबल्स। एंड दैट इज द रीजन पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा अगर पिकअप ट्रक का या मसल कार्स का अगर कहीं मार्केट है, सो दैट इज इन यूएस, राइट। और यूएस में क्यों है वो इसलिए है बिकॉज दे कैन अफोर्ड दोज व्हीकल्स ओवर देयर एंड दे कैन अफोर्ड इजिली बिकॉज ऑफ द लोअर कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स ओवर देयर, राइट।
अब क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस वहां पर कम है विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज, तो दे कैन अफोर्ड इट, और इसीलिए उनको ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। और बाकी जो ग्राफ्स हैं दैट इज पर्टेनिंग टू दी अदर कंट्रीज। तो आप देख सकते हो, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि सारी और अदर कंट्रीज में ये ट्रांजिशन किस तरीके से चल रहा है। इट इज नॉट ओनली इन इंडिया बट इज हैपनिंग एवरीवेयर एट द सेम टाइम। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो हमने देखा ही कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो अच्छा खासा तेज स्पीड से ट्रैक्शन गेन कर रहा है, इवन कर चुका है, राइट। यू हैव टेक्नोलॉजी विद यू, देयर आर कंपनीज हु हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टू व्हीलर्स भी आ चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के घर पे होंगे भी, राइट। देन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश हो चुका है, और बाकी जो रिमोट प्लेसेस है वहां पर हो ही रहा है, राइट। और टेक्नोलॉजी भी प्रूव हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेप्टेंस मिल चुका है कस्टमर्स की तरफ से, राइट। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी के लिए जब वो एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, राइट। अब ऐसा नहीं है कि ये सब टेक्नोलॉजीज अभी नई डेवलप हुई हैं, ये सब शुरू से हैं, लेकिन कंपनीज जो हैं दे वर एप्रीहेंसिव, वो बस डरते थे कि ऐसा ना हो हम इतने पैसे डाल के इतना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं और हमारी गाड़ी ही एक्सेप्ट ना हो मार्केट में, राइट। जो चीज इलेक्ट्रिक के साथ में शुरुआत में हुई, लेकिन ओवर अ पीरियड टाइम इट इज सेटल्ड नाउ। अब इसी की तरीके से अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे तो इंजन खत्म हो गया, राइट। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन पे, राइट। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा फ्यूल जो आज चर्चा में है, जिसके ऊपर अधिकतर कंपनीज आर फोकसिंग, दैट इज द हाइड्रोजन, राइट। मेरी प्रीवियस कंपनी, सो माय प्रायर टू ल्यूगांग आई वाज वर्किंग फॉर जेसीबी। सो हम लोगों ने वहां पर बैकहो लोडर, दैट इज द जेसीबी मशीन, एज वेल एज दिस टेलीहैंडलर, इनफैक्ट एक्सकेवेटर्स, एवरीथिंग वी हैव डेवलप्ड इन हाइड्रोजन। आवर मशीन्स आर एब्सोल्युटली रेडी। जिस दिन हमें गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया आप इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन ऑपरेटेड व्हीकल्स लॉन्च करना शुरू कर दो, सो वी कैन इजिली लॉन्च दोज व्हीकल्स। हमारे पास टेस्टिंग वेस्टिंग करके प्रोडक्ट्स आर एब्सोल्युटली रेडी। और कुछ नॉर्थ अमेरिकन एंड कुछ यूरोपियन मार्केट्स में ऑलरेडी हम लॉन्च कर भी चुके हैं हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स, जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से पुश है, राइट। सो हाइड्रोजन फ्यूल is relatively lighter fuel, is a clean energy source that emits only heat and water upon combustion, and is increasingly garnering attention in heavy duty mobility sector, right? तो हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन में सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल है क्या एग्जैक्टली। सो हाइड्रोजन इज एन इको फ्रेंडली फ्यूल सुटेबल फॉर हैवी ट्रांसपोर्ट सेक्टर, which accounts for approximately 27% of GHG, that means global house gases, right? So as the potential of the hydrogen fuel increases, new extraction methods are being developed for creating green and blue hydrogen. Unlike conventional hydrogen extraction processes, these new processes or these new production methods rely on renewable energy resources, leading to an entirely emission-free process. अब कैसा है हाइड्रोजन के साथ में जो बेनिफिट्स हैं, फर्स्ट विल फोकस अपॉन दोज बेनिफिट्स। इसके साथ में बेनिफिट्स क्या है? हाइड्रोजन जो है ये, जो हम जैसा हाइड्रोजन हम वर्ड बोलते हैं तो ये इस तरीके से नहीं है। हाइड्रोजन में भी देयर आर मल्टीपल टाइप्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ग्रीन एंड ब्लू हाइड्रोजन। सो ये एक बेसिकली कॉम्पोजिशन होता है हाइड्रोजन फ्यूल का, विच कैन बी यूज्ड इन इंजन्स। इट इज नॉट लाइक कि जो भी आपने गैस बनाई हाइड्रोजन वो एक ही मतलब एक ही टाइप है और दैट्स स्ट्रेट अवे यू कैन यूज। इट इज नॉट लाइक दैट। हाइड्रोजन के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, राइट। उसमें जो गाड़ियों में यूज किया जाता है दैट इज ग्रीन एंड ब्लू वेरिएंट ऑफ हाइड्रोजन। इसीलिए आप ये देखेंगे कि इस कार के ऊपर ये ब्लू लाइनिंग है और इस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के ऊपर सारा ये ग्रीन है, राइट। ये ग्रीन जो नियॉन ग्रीन आप देख रहे हैं, दैट्स बेसिकली इज अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, दैट कॉम्पोजिशन और दैट वेरिएंट व्हिच इज बीइंग यूज्ड बाय द इंजन। और ये व्हीकल क्योंकि ये फ्यूल सेल ऑपरेटेड है, डायरेक्टली हाइड्रोजन यूटिलाइज नहीं कर रहा है, ये फ्यूल सेल पे चल रही है जो अगेन हाइड्रोजन का ही डेरिवेटिव है, तो ये ब्लू दिखाया हुआ है। इन दो के अलावा तीसरा अभी कोई हाइड्रोजन नहीं है या वेरिएंट नहीं है हाइड्रोजन गैस का जो कि यूज किया जाता है इंजन्स में। तो अभी हम समझते हैं कि इसकी एफिशिएंसी के बारे में, राइट। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स क्या है? सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल in heavy duty mobility, that means आपके ये commercial vehicles, passenger segment, is its exceptional energy efficiency, right?
Hydrogen powered vehicles can be utilized in two forms. Either it can be fuel cell operated, right, जहां पे आप हाइड्रोजन यूज करोगे, एंड सेकेंडली जो है आपके डायरेक्ट इंजन को आप कंपेटेबल करोगे, राइट, to an extent that directly in place of fuel or diesel or petrol, you directly put hydrogen gas over there and it starts running in, right? तो इसमें बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहला बेनिफिट है कि हाई एनर्जी डेंसिटी. जैसा एक हम वर्ड बोलते हैं ना, कैलोरीफिक वैल्यू. सो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो बेसिकली डिफाइन करता है हाउ मच एनर्जी इज इवॉल्व्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज बर्न्ड इन एयर, राइट? सो जब आप पेट्रोल को जलाते हो, 1 ग्राम पेट्रोल को जलाते हो तो उससे कितनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी निकलती है? जब डीजल को जलाते हो तो कितना निकलता है, और जब हाइड्रोजन को जलाते हो तो कितना निकलता है? सो दैट इज नोन एज द एनर्जी डेंसिटी. सो हाइड्रोजन फ्यूल हैज अ हाई एनर्जी डेंसिटी, which means it can store a large amount of energy per unit mass. यानी कम क्वांटिटी में it will be able to produce higher power that gives you longer range, right? Second is reduced weight. Hydrogen fuel cells are generally lighter than batteries used in electric vehicles, contributing to overall weight reduction in heavy duty vehicles or heavy duty applications. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अगर हम बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम, तो आई वुड नॉट से, लेकिन एक जो चीज है वो है बैटरी का ओवरऑल वेट, दैट इज वेरी हाई. अब उसको बेनिफिट भी होता है अगर आप उसको सही तरीके से पोजीशन करोगे, सो दैट इंप्रूव्स द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द कार, राइट? एंड दैट्स व्हाट ऑल द कंपनीज आर डूइंग. वो क्या करते हैं कि जो आपका फ्लोर रहता है, सो दे इंटीग्रेट बैटरीज इन द फ्लोर. दिस बेसिकली इंप्रूव द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द व्हीकल. सेकंड, उसके सीजी को इंप्रूव करता है, सीजी को लो रखता है, जिससे गाड़ी स्टेबल रहती है, राइट? सो दे हैव यूटिलाइज्ड दैट डिमेरिट एज अ मेरिट इन कार्स, ठीक है? लेकिन हाइड्रोजन के केस में तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि दैट गैस इटसेल्फ इज लाइटर होने के बावजूद इट हैज हायर एनर्जी डेंसिटी. देन थर्मल एफिशिएंसी. Hydrogen fuel converts a higher percentage of the chemical energy in hydrogen into usable electricity compared to internal combustion engines, right? उसके बाद में आप देखेंगे फ्यूलिंग और रीफ्यूलिंग, रादर आई शुड से. हाइड्रोजन टैंक्स जो रहते हैं वो बहुत इजीली फिल किए जा सकते हैं. जैसे आप नॉर्मली कार में पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं, या आप सीएनजी डलवाते हैं फॉर दैट मैटर, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी इजीली फिल किया जा सकता है. देन लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट. Now, hydrogen compared to battery-powered or internal combustion engines offer comparable, if not superior performance and reliability in multiple ways. ठीक है? हाइड्रोजन की भी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो काफी कम है विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोल एंड डीजल इंजन. अब इसमें कैसा रहता है कि जैसे अगर आपकी लेट्स से फ्यूल सेल ऑपरेटेड व्हीकल है, सो फ्यूल सेल कैन रिड्यूस कॉस्ट एसोसिएटेड विद changing batteries or charging batteries or managing batteries, which results in reduced labor, time, space, and peak power demands, right? सेकेंड थिंग, यूनिट्स जो फ्यूल सेल्स रहते हैं उनकी लाइफ जनरली लेड एसिड बैटरी से ज्यादा रहती है. फ्यूल सेल्स जो रहते हैं वो जल्दी चार्ज होते हैं कंपेयर टू बैटरीज, जिससे आपका डाउन टाइम कम होता है. हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिलेंट अगेंस्ट हार्श कंडीशंस एंड इज केपेबल ऑफ मिनिमाइजिंग ऑपरेशनल इन सब जीरो वेदर एज वेल, राइट? और हाइड्रोजन फ्यूल इज नॉट सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग ऑयल प्राइसेस, मेकिंग एन ऑपरेशनल एनर्जी प्राइसेस मोर प्रेडिक्टेबल. जैसे आप लोग पढ़ते ही हैं न्यूज में कि पेट्रोल के, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उससे सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं. बट अनलाइक हाइड्रोजन विच कैन बी जनरेटेड फ्रॉम मल्टीपल वेज, राइट? आप इसको बायोगैस से भी जनरेट कर सकते हो, आप इसको प्लांट से भी जनरेट कर सकते हो. सो इसके ऊपर ऑयल के प्राइसेस का कोई इंपैक्ट नहीं आता है, राइट? और क्योंकि उसके चलते इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं आता है, तो इट इज ए मोर स्टेबल फ्यूल कंपेयर टू एनी अदर, राइट? तो ये सब चीजों के चलते हाइड्रोजन को एक्सेप्टेंस मिल रहा है, एंड दैट इज रीजन दीज कंपनीज दे हैव डेवलप्ड, लाइक इन जेसीबी व्हेन वी डेवलप्ड दीज इंजन्स, तो हम लोगों के पास में यही बेनिफिट था कि ये सारे बेनिफिट्स हैं, इसके चलते स्ट्रेट अवे वी कैन डेवलप दी इंजन्स, और हमें इंजन्स में बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, राइट? व्हीकल्स तो सेम ही है, हमें सिर्फ इंजन्स को उस गैस के हिसाब से ट्यून करना पड़ा, दैट्स ऑल. It was just a calibration for those gases, and of course फ्यूल हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए सिलेंडर्स की पोजिशनिंग वगैरह और उसके जो अलाइड सिस्टम्स थे वो भी इंस्टॉल करने पड़े. सो डेफिनेटली हाइड्रोजन के लिए रूम तो है, रूम इन द सेंस हाइड्रोजन के लिए एक अच्छा खासा स्कोप है फ्यूचर में.
अब बस यही है कि उसके लिए गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है, बिकॉज ये सारी चीजों के लिए कंपनीज आर रेडी, राइट? यू टेल एनी कंपनी, विद इन नो टाइम दे विल बी एबल टू डेवलप प्रोडक्ट एंड दे विल लॉन्च इट इन द मार्केट। बट अगर गवर्नमेंट की तरफ से पुश नहीं है, राइट, सो वो जितना भी इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है ना, वो सारा पानी में चला जाता है। ठीक है, कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया, दे डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, दे डेवलप प्रोडक्ट्स, राइट? किसी किसी केस में कंपनीज को नए पूरे जॉइंट वेंचर्स करने पड़ते हैं, नए प्लांट स्टैब्लिश करने पड़ते हैं। और वो सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको बिजनेस चाहिए, और फ्यूचर में अगर बिजनेस नहीं मिला, राइट, तो कंपनीज को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जो ऑलरेडी वो BS4 से BS6 के टाइम पे अच्छे से उन लोगों ने भुगता, सबने भुगता। मारुति जो एक टाइम पे डीजल इंजन सारी गाड़ियों में दिया करता था, राइट, जब से नॉर्म्स चेंज हुए, फिएट ने मना कर दिया कि आई विल नॉट प्रोड्यूस डीजल इंजन, और उसका इंपैक्ट सीधे मारुति को भुगतना पड़ा अच्छे तरीके से, राइट? जब वो उनकी टैगलाइन थी कि कितना देती है, सो दैट वाज मोर सुटेबल विद द डीजल इंजन, क्योंकि डीजल इंजन का माइलेज डेफिनेटली बहुत अच्छा था मारुति के। बट BS6 में व्हेन फिएट डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू इंजन्स, so Maruti also have to accept that, because that engine what Maruti was providing, that was from Fiat, right? तो ये तो इस तरीके के लॉसेस जो है ना, फिर कंपनीज को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, और उनकी भी फिर फ्यूचर में किसी चीज के ऊपर भी काम करने की जो उनकी ईगरनेस बोलूंगा या उनकी जो विलिंगनेस बोलूंगा, वो धीरे धीरे कम होती है, राइट? वो बोलते हैं कि सर पहले आप कदम उठाइए, फिर हम कदम उठाएंगे। हम उठा लेंगे और आपने नहीं उठाया तो हमें प्रॉब्लम होता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल इज स्केलेबल इन heavy duty mobility, which supports both future growth as well as adoption within the transport sector. But हाइड्रोजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, which only government can support if expanded properly, right? Definitely hydrogen can be accepted as an alternative for both petrol and diesel, because the demand for hydrogen powered vehicle is increasing. Refueling stations and infrastructure is the only thing which is required to support, right? और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें reduce carbon footprint. So hydrogen offers a pathway to decarbonize heavy industries such as steel production and chemical manufacturing by replacing carbon-intensive processes with hydrogen-based technologies. So these sectors can significantly reduce their overall carbon footprint with and align with the global efforts to combat climate change. Right? अब ये तो थे हाइड्रोजन के सारे बेनिफिट्स, राइट? अब हाइड्रोजन के कुछ मतलब कुछ नेगेटिव्स भी हैं जो सभी फ्यूल्स के रहते हैं, जैसे प्रोडक्शन चैलेंजेस। सो कन्वेंशनल मीन्स ऑफ जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्यूल आर एनर्जी इंटेंसिव एंड टेंड टू रिलाई ऑन फॉसिल फ्यूल्स, राइट? सो ये एक हाइड्रोजन का प्रोड्यूस करने के लिए भी आपको पेट्रोल डीजल जलाना पड़ता है, जो मशीनरीज आप ऑपरेट कर रहे हैं। सो वो अगेन, और वो भी काफी मात्रा में जलाना पड़ता है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ लीटर्स से हो जाता है, दैट इज ऑल्सो एट अ गुड नंबर। वो एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है डिस्ट्रीब्यूशन। सो distributing hydrogen will require extensive infrastructure and network with specialized transportation, which is still not existing in India. Third thing, limited infrastructure and lack of refueling stations. अभी इनके लिए एक स्पेसिफिक ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है कि they will be coming up with the dedicated hydrogen fuel stations, जो कि अभी हमें नहीं पता कि वो किस स्टेज में है। देन इसके साथ में स्टोरेज की भी कॉस्ट काफी ज्यादा रहती है। एंड लास्ट इज द परसेप्शन फॉर द पीपल। नाउ कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हाइड्रोजन जो है इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, एंड अगर किसी व्हीकल में हाइड्रोजन है और उसको अगर आप किसी चीज से टक्कर कर दो और उसमें अगर डैमेज हो जाए तो इट कैन ब्लास्ट। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो गैस है ये कार में जब भरी जाती है, राइट, जब फ्यूलिंग होती है तो एक बहुत ही लो प्रेशर पे की जाती है, राइट? वो इतना प्रेशर नहीं होता है कि अगर आप उसमें कुछ चीज मार दो तो वो ब्लास्ट हो जाए। बिकॉज इंडिया को छोड़ के बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, देयर आर व्हीकल्स व्हिच आर ऑपरेटिंग ऑन हाइड्रोजन फॉर पास्ट सो मेनी इयर्स एंड नथिंग हैज हैपेंड सो फार। तो ये जस्ट एक परसेप्शन है जो कि ओवर अ पीरियड टाइम खत्म हो जाएगा। जैसे लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ में था, थोड़ा थोड़ा शुरुआत में अप्रेंसिव था, लेकिन धीरे धीरे पीपल हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग इट। सो सेम विल कम विद द हाइड्रोजन एज वेल। एंड एज ऑफ नाउ, आफ्टर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, this is the second alternative which can support both petrol and diesel in future as of now. Now we'll speak about the career opportunities, right? So this is also very important because in the EV sector, right, a dedicated research team has been established in last couple of years
and that is also required. It is essential also to stay updated with the latest global trends in the technology and ideas. Their focus is on enhancing battery charging, recharging technology, as well as the sourcing fuel and batteries. So अभी कैसा है, जैसे अगर आप करियर की बात करते हैं ईवी या ऑल्टरनेट फ्यूल्स में, जैसे मेरी कंपनी का बात करता हूं तो मेरी कंपनी में एक डेडिकेटेड टीम है जो ईवीज के ऊपर, क्योंकि हम लोग भी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर चुके हैं, राइट। कुछ हमारे पास एग्जिस्टिंग व्हीकल की वेरिएंट्स हैं जो कि ईवी में भी अवेलेबल हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में अगर जैसे जैसे ये आएंगे तो इनके लिए कोई डेडिकेटेड टीम्स डेवलप होंगी, ऐसा नहीं है। वही लोग जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स पे काम कर रहे थे, उन्हीं लोगों को विद द हेल्प ऑफ by imparting more trainings, right, उनको by getting them through some dedicated courses, उन्हीं लोगों को अपलिफ्ट करके इन सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। तो आप देखेंगे, जैसे अगर हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग में यही सारी बेसिक फील्ड्स होती हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, राइट। आप और हम लोगों ने सबने इन्हीं फील्ड से इंजीनियरिंग किया है। तो ईवी में जाने के लिए या ऑल्टरनेट फ्यूल वाले डिविजन्स में जाने के लिए कोई डेडिकेटेड अलग से कोई इंजीनियरिंग स्ट्रीम नहीं है, यही सारी स्ट्रीम्स हैं। बट ये किस तरीके से यूटिलाइज होती हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग के बंदे जो हैं, दे कैन डायरेक्टली join the manufacturing divisions of companies which are dealing in the lithium ion cells, right? Manufacturing and assembly of battery packs, recycling of batteries. So इसके लिए basically जो qualifying criteria रहता है वो रहता है chemical engineering along with mechanical या electrical. Then computer science वाले कहाँ जा सकते हैं? So they can directly find the places in developing algorithms for battery management system, right? Making IoT modules for sharing real-time data generated by the EV. यूजिंग AI टू इम्प्रूव द BMS, राइट। ये यही लोग हैं जो IT सिस्टम्स में काम कर रहे हैं, जो कि बैटरी या EV व्हीकल्स में भी काम करेंगे। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले तो डेफिनेटली इनका तो काम सेम ही रहेगा सब जगह, थर्मल सिस्टम, व्हीकल एंड पार्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डेवलपिंग फ्रेमवायर फॉर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, डेवलपिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सेंसर्स इन द व्हीकल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। देन इलेक्ट्रिकल टीम, ये भी अगेन अलॉन्ग विद मैकेनिकल, working on motors, quality control, testing of battery packs, developing wiring harnesses for multiple functions in EV charging system. And these are not only for EV, even for hydrogen powered vehicles or let's say LNG or PNG powered vehicles, these things will remain same. Mechatronics, vehicle design, robotics for part assembly, powertrain components. So what I'm trying to say is, आप लोग जिस भी फील्ड में हो, so वो फील्ड्स EV vehicles में किस तरीके से काम करते हैं, so that is what is defined over here, right? उस तरीके से आप जाने के लिए आप इनिशिएट कैसे कर सकते हो, जैसे अगर आप लोग थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, आई डोंट नो आप कौन सी स्टेज में हो अभी, जैसे व्हाट यूजुअली पीपल आर डूइंग, अभी हम लोगों ने GTs हायर किए हैं लास्ट मंथ, राइट। सो वी हैव हायर्ड 27 GTs एंड उनमें से मेजॉरिटी लोगों ने जो अपने थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट्स किए थे वो सारे सब लोगों ने EV पे ही किए हुए हैं, राइट, which is the best example, best way to develop foundation for yourself. Now build projects. A simple project example, building an energy efficient DC converter for an EV application can prove candidate suitability for the role of an R&D engineer, right? Making a project require an overall understanding of the vehicle design and helps student fine tune their conceptual knowledge, right? जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। College students across the country are building electric vehicles for their projects. For example, IIT Kharagpur के students ने they developed their own EV after taking the mentorship from the faculties over there. Then students at Sharda University they built their own electric bike, which was even showcased at Auto Expo, right? So these are the ways by which you can align yourself and prepare yourself for the EVs market or the alternate fuel division market, right? इसके लिए मेहनत आप ही को करना पड़ेगा, बट दीज आर द वेज, राइट। कौन सी स्ट्रीम्स R&D डिवीजन किस डिवीजन को सपोर्ट करती हैं, दैट इज डिफाइंड ओवर हियर। देन आप उसमें कैसे जा सकते हो, बिल्ड योर प्रोजेक्ट्स, बिकॉज आपको अपने आप को विजिबल करना है ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। और आपको बेसिकली समझना भी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल कंसेप्ट्स ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू वर्क इन दीज डिपार्टमेंट्स। तो वो आपको बेनिफिट कहां से मिलेगा, बाय डूइंग सम प्रोजेक्ट्स। जब आप खुद हैंड्स ऑन कुछ बनाओगे, सो यूल अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज इन्वॉल्वड इन दैट, राइट। और जब आप उसको प्रेजेंट करोगे, सो द पीपल
with whom or in front of whom you are sitting and presenting. So they will acknowledge that and they'll recognize you, right? Second thing, do internships. Internships are very valuable as they let you work closely with the engineers working in the live projects in the industry, right? अब आजकल कैसा है, जैसे जनरल ट्रेंड है कि पीपल, मतलब जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो अपने थर्ड ईयर में, some people are going to Bhilai steel plant, some are going to Sarni steel plant, right? Without even understanding and without even thinking कि वहां जाके उनको क्या करना है, right? यही आपके पास में टाइम रहता है जहां पे आपको जहां भी जाना है, ऐसी इंजीनियरिंग इज द टाइम वेयर यू डेवलप फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर। तो आपको जिस भी फील्ड में आगे नाम कमाना है, जिस भी फील्ड में आप जाके काम करना चाहते हैं, उन्हीं फील्ड्स की तरफ आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट्स बनाइए, उनके बारे में स्टडी करिए, वहां पे जाके इंटर्नशिप करिए एंड धीरे धीरे यूल गेट द ब्रेक फ्रॉम दीज कंपनीज, राइट? अभी भिलाई स्टील प्लांट, सारणी स्टील प्लांट में यू कैन गो प्रोवाइडेड इफ यू हैव इंक्लिनेशन ओवर देयर। अगर आपको उधर ही जाना है, राइट, यू नीड टू डिसाइड कि आपको जाना किधर है। सो जैसे एग्जांपल बोलता हूं, अगर आप थर्ड ईयर में है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टाटा मोटर्स के ईवी डिवीजन में इंटर्नशिप करने का, सो दैट इज नथिंग लाइक दैट, राइट? इवन टाटा मोटर्स तो बड़ा नाम हो गया, अगर आपके पास कोई छोटी ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे एम्पेयर ऑटोज है, राइट, अगर आपको उसमें ही मिलता है, सो दैट इज वेरी गुड, बिकॉज वहां पे आप जाओगे, लोगों से आपका रेपो बढ़ेगा, you'll understand the intricacies involved in the project, how they develop electric vehicles, what are the components of electric vehicle. You'll get everything what you want to understand over there. Then research projects and teaching fellowships are equally precious additions to the skill basket of an engineering student, right? इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जैसे देर आर courses produced by NPTEL, right? Then there are many other institutes also which are providing courses in the electrical as well as the alternate fuel divisions as existing in India. Now, अब ये जो देख रहे हैं ये टाटा की ईवी डिवीजन है, कंप्लीटली ईवी, और इसमें इन लोगों ने ये मैनेजमेंट ट्रेनीज हायर किए थे थ्रू कैंपस, राइट? सो ये टाटा का ईवी डिवीजन है। अब आप देखेंगे, आई विल जस्ट टेक यू एग्जांपल। आप देखेंगे, मैंने एक लिंक शेयर किया है आपको, इसमें आप देख सकते हैं कि दीज आर 12 ईवी कंपनीज इन इंडिया। ये 8 अप्रैल का लिंक है, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है आज की तारीख में इंडिया में, और जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रोथ के लिए, अलॉन्ग विद सैलरी पैकेजेस एंड एवरीथिंग। तो इसमें सबसे पहला नाम है टाटा मोटर्स का, राइट? सो यू कैन सी देयर सैलरी पैकेजेस एंड व्हाट बेनिफिट्स दे आर प्रोवाइडिंग। जस्ट आफ्टर टाटा मोटर्स you have Mahindra Electric, right? Their vision, their salary packages, and their benefits. Then you have MG Motors in India, their salary packages, their vision, and their benefits. And similarly, you have Electric, Ather Energy, Okinawa, Revolt, Lohia Autos. There are multiple companies who are working in India in electrical division, and they are looking for good candidates so that they can hire, right? मैं आपको एक और दूसरा लिंक दिखाता हूं। दिस इज बेसिकली सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लाइक सियाम, which is for the IC engines. This is for the electric vehicles, right? So electric vehicles के ऊपर क्या काम चल रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी है, that everything, this is basically a government portal. कितनी व्हीकल्स साल में बिक रही हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, एवरीथिंग यूल गेट इन दिस ऑन दिस स्पेसिफिक साइट। क्या क्या आपके नए गवर्नमेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं, राइट? क्या क्या आपके मिशंस हैं, क्या स्टैट्स हैं आज की तारीख में इंडस्ट्री में, राइट? आपके नॉलेज सेंटर में देखेंगे कि क्या क्या सिस्टम नए नए डेवलप हो रहे हैं, बैटरी सेफ्टी को लेके क्या नए रूल्स निकले हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या काम चल रहा है। सो एवरीथिंग यूल गेट ऑन टू दिस स्पेसिफिक साइट। और ये एक साइट जो है गवर्नमेंट डेवलप की है, जो कि ये धीरे धीरे एवरी डे इट इज बीइंग इम्प्रूव्ड। आप देखेंगे कि जो भी नई नई पॉलिसीज रोल आउट हो रही हैं, दैट स्ट्रेट अवे यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, राइट? किसी स्टेट से स्पेसिफिक अगर कोई पॉलिसी डाउन देखिए, आप यहाँ देखेंगे छत्तीसगढ़ की स्टेट पॉलिसी, लद्दाख की, आसाम, उड़ीसा, या एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट? वहां पे अगर दिल्ली में ईवी की पॉलिसी क्या है आज, राइट, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बेनिफिट्स हैं, किस टाइप की गाड़ी आप खरीद सकते हो, उसके ऊपर क्या सब्सिडीज एप्लीकेबल है, एवरीथिंग यूल गेट ओवर हियर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट एंड यू शुड नोट डाउन दिस वन।
और अगर आपको ईवी के ऊपर अगर आपको आगे जाने की इच्छा है तो इस साइड को आप ध्यान में रखें। इसके अलावा मैं आपको एक कंपनी का भी एग्जांपल देता हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस कंपनी के बारे में जानते होंगे। आई एम शोइंग यू दिस बिकॉज दिस कंपनी अल्ट्रावायलेट, this is completely Indian company, right? They do not have any collaboration with any company outside the India. This product is absolutely developed by Indian guys. और इस कंपनी में बहुत ही छोटा ग्रुप है, कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, बहुत छोटा ग्रुप है ये, जिसमें मुश्किल से इंजीनियरिंग टीम ऊपर से नीचे तक मिलाकर हार्डली 100 लोगों से ऊपर नहीं है। एंड दे हैव डेवलप्ड दिस ब्यूटीफुल मशीन, राइट? इन लोगों ने इसको लॉन्च, ये व्हीकल ऑलरेडी इन लोगों ने 5 से 6 साल पहले बना दिया था, बट फॉर लास्ट 5 to 6 years they did not launch this product because they wanted to test it thoroughly before they launched it in India, right? अब ये तो इसकी साइट है बेसिकली, और ये जो मोटरसाइकिल व्हाट दे हैव डेवलप्ड दैट हैज गार्नर्ड अटेंशन थ्रू आउट द ग्लोब, राइट? दिस इज देयर प्रोडक्ट, व्हाट यू सी ओवर हियर, राइट? ये कंप्लीटली इंडिया में ही डिजाइन हुई है, पूरी तरीके से इंडिया में डिजाइन हुई है बाय इंडियन पीपल, राइट? और ये लॉन्च कर चुके हैं और इनके बारे में सब कुछ यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल है। और इसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं दोज आर नॉट फ्रॉम द ऑटोमोटिव सेक्टर, दोज आर डायरेक्टली कैंपस रिक्रूटेड फ्रॉम कंपनीज, ठीक है? उनको ट्रेनिंग दिया गया, अल्ट्रावायलेट ने उनको ट्रेनिंग दिया, एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग, दे स्टार्टेड वर्किंग विद अल्ट्रावायलेट, और इन लोगों ने दे अर्नड अ लॉट ओवर देयर, राइट? दिस इज द प्रोडक्ट एज यू सी ना। आप देख सकते हैं कि आपको किसी भी एंगल से ये देखने में इंडियन प्रोडक्ट लगता ही नहीं है, राइट? बिकॉज इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में। और ये इनका अपकमिंग फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी दे हैव शोकेस्ड इन ऑटो एक्सपो, राइट? इफ यू लुक एट ओवर हियर, सो दिस इज देयर अपकमिंग न्यू प्रोडक्ट। मतलब ये फोटो में आप जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि फोटो में एग्जैक्टली, if you look at the photograph, so you'll not be able to understand what exactly this product is, but I'm telling you the numbers what this vehicle packs, that is totally different. You can see the number itself speaks for themselves, and this they'll be launching in next couple of months. और किसी भी कंपनी के लिए बेस से उठ के इस तरीके के प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना इज नॉट अ जोक, राइट? So what I'm trying to say is there is potential in the market, but the only thing is you yourself have to gear up to cope up with these challenges in the market, right? So that's all from my side. थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो ही गया है. Now we are open for the question answer rounds. I hope you guys enjoyed the session. Yes, Samrat. So let's give some time, 4 minutes or around 5 minutes. Let's just give it for question and answer round. Anyone who has got any queries, you can unmute yourself and ask the question. Else, you can also drop it in the chat box. Anything, it could be related to job opportunities or anything that has been explained in the session. कुछ भी कुछ सवाल हो आप पूछ लीजिए. Okay. No one is interested to. So that's fine. With this, we'll conclude the session, Samrat. That's fine, right? Okay, that's okay. So with this, we'll conclude the session now. Right. Yes. So thank you so much, Samrat, for joining us today and sharing your valuable info. It was very insightful. I heard the entire session. It was very insightful. I believe everyone found this session useful and we were able to address whatever you were looking for. Thank you everyone for joining in. Also a reminder for everyone to fill out the feedback form. I have shared the link in the chat. This would help us improve the session and also invite, we would be able to invite you for the upcoming sessions. I have also shared the website link in the chat. There you'll find the recording of this session, also the previous sessions organized in the past. You can check the upcoming events and register there. You can also join the Apna community and just write interested on the event announced.
we'll just send you a Google Meet link to join the sessions as well. Also, as mentioned earlier, we'll keep having these sessions every day. We hope to see you all in the next session. Have a great evening. Thank you everyone for joining in. Thank you, Thank you, Siddharth. Sneha. Thank you, everyone, for listening to me patiently for 1 hour. So thank you. Thanks for your time. Thank you. Thanks everyone. Bye.